So what about plant physiology? Suppose I'm talking about plant physiology. In what way you are observing, it is my external look that can be called as morphology. And the internal structure and organization is known as what? Anatomy. Anatomy. And all these things are connected to our functions, but most important aspect of any structure is physiology, the functional aspect. Okay, so today we are going to start the first and most important aspects of biology, and that is called physiology. Let us start with plant physiology. Okay, plant physiology, why? Because you will find some problem in plant physiology usually. Because usually it is considered to be comparatively tougher, and we have interest towards our which branch? We have interest towards our animal, because we are human being, we are connected to that. So write down plant physiology. Plant physiology deals with all functional aspects. It deals with all functional aspects of plant and its parts. So what are the parts? Like leaf, stem, root? They are also useful for conduction, absorption, and photosynthesis. Who is the father of plant physiology? Can you tell me who is the father of plant physiology? Stephen Hales is the father of plant physiology. And what are the branch which can be included under plant physiology? Plant physiology includes transport in plants. It may be water transport, it may be mineral transports, or it may be food metal transport. The second chapter, can you tell me? क्या है? Mineral. Mineral nutrition. The third chapter, Photosynthesis in higher plants. photosynthesis, I'm just writing precisely. And the fourth chapter, respiration. I may say cellular respiration. Respiration in plants. Actually, it's not about plants, it's about animal also. But I may say cellular respiration. And after that, what is the next chapter? Plant growth and development. Yes, growth, development, and movement. Little bit of movement also will guide you. And then there's a branch which is not taught anywhere, but that is called stress physiology and physiology that is under this physiology of flowering. Okay, etc. These portions will deal. Now today, what will start today? Transporting plants. ठीक है, इसको मैं क्लोज करता हूँ. हो गया? और थोड़ा फोटोग्राफ्स को भी क्लोज कर देता हूँ, आपको इजी होगा. फोटोग्राफ्स रहना चाहिए. आप बताओ मधु, should I open this photograph? Yes, sir.
Yes, sir. ठीक है, बीच बीच में हम ऑन करेंगे और बीच बीच में ऑफ भी कर लेंगे इफ रिक्वायर्ड। तो उसके आगे चलते हैं। तो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे? बोलो। Transport in plant. ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, वेरी गुड। तो चलो ट्रांसपोर्ट पढ़ाते हैं। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो ट्रांसपोर्ट में किस टाइप का ट्रांसपोर्ट होता है बोलो? एक होता है Water. लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है Yes, sir. Short distance transport. और दूसरा Short होता है distance. शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, इन एडिशन टू दैट और क्या होता है ट्रांसपोर्ट में? वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, Gaseous. Mineral, मिनरल mineral transport. ट्रांसपोर्ट होता है। और कैन यू टेल मी एनी अदर ट्रांसपोर्ट? शुगर ट्रांसपोर्ट भी होता है ना, शुगर Yes, sir. ट्रांसपोर्ट होता है। गैसियस ट्रांसपोर्ट भी होता है। ओके, तो वाटर ट्रांसपोर्ट, मिनरल ट्रांसपोर्ट, शुगर ट्रांसपोर्ट and like that, the etc many other substances may be transported। ट्रांसपोर्ट में ट्रांसपोर्ट को बताने के लिए हम लोग को कुछ प्रोसेसेस चाहिए, उससे इजी हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ, ये एनसीईआरटी हम लिख लेंगे, एनसीईआरटी। ओके, तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट through vasculature Translocation. is called as all of you should say it's called translocation। What do you mean by vasculature? बोलो, vasculature क्या होता है? Xylem, phloem. Xylem Xylem and phloem. and phloem होता है। शॉर्ट डिस्टेंस तो प्लाज्मोडेस्माटा सेल टू सेल भी हो सकता Yes, है, sir. बट दिस इज अबाउट जाइलम एंड फ्लोएम। तो हम लोग we will not see dream, we'll work and dream will come nearer to us। okay, हम लोग कर सकते हैं, तो डोंट वरी। तो ये ट्रांसलोकेशन का फर्स्ट पार्ट हो गया हम लोग का। ये क्वेश्चन आने का चांस है। और ये लॉन्ग डिस्टेंस कैसे होता है, शॉर्ट डिस्टेंस कैसे होता है, डिफ्यूजन होता है, आई विल टेल यू लॉट ऑफ अदर chemistry and biology together so that it will be clear to you। So now you tell me, spark, you know, do you know spark? What do you mean by spark? बोलो, spark क्या होता है? spark का मतलब होता है soil plant atmosphere continuum। लिखो spark, soil plant atmosphere continuum। There is a continuum of water or not, from soil to plant and plant to atmosphere। ये देखो, ये आपका प्लांट है और ये उसका रूट सिस्टम है और ये इसका लीफ सिस्टम, लीफ होता है। और हम लोग पानी के बारे में डायग्राम बनाएंगे। तो ये क्या है बताओ, जो वाटर लॉस होता है? ट्रांसपीरेशन। Transpiration. वेरी गुड। और यहाँ पर जो पानी ऊपर आता है इसको क्या बोलते हैं? असेंट ऑफ सैप। असेंट ऑफ सैप। सैप मतलब सैप वाटर होता है या वाटर प्लस मिनरल्स होता है? वाटर प्लस मिनरल्स होता है। Water plus Water plus mineral. mineral. Should I say solution? Should I say Yes, sir. solution? Solution होता है। और यहाँ पर क्या होता है? रूट में absorption होता है कि नहीं? Yes, sir. Absorption। Yes, sir. So this part is called, ये क्या होता है? रूट। और ये क्या होता है? स्टेम। Stem. और ये क्या होता है? लीफ होता है। Leaf. Leaf. तो ये टोटलिटी में हम अगर जाएंगे तो ये होता है, ये मिट्टी के अंदर है कि नहीं? ये रूट जो है मिट्टी के अंदर है कि नहीं? Yes. Yes, sir. तो इसको हम सॉइल बोलते हैं। और ये सबको मिला के क्या बोलेंगे? प्लांट बोलेंगे।
जब ट्रांसपिरेशन होता है वो एटमॉस्फेयर को चला जाता है कि नहीं, एटमॉस्फेयर, तो दैट इज ए कंटिन्यूटी। तो ट्रांसपिरेशन ऑब्जर्प्शन करता है या ऑब्जर्प्शन ट्रांसपिरेशन करता है? ट्रांसपिरेशन ऑब्जर्प्शन एंड एब्सेंट ऑफ सैप करता है कि नहीं करता है? बोलो। बोलो। सर क्या? ट्रांसपिरेशन ऑब्जर्प्शन करता है या ऑब्जर्प्शन ट्रांसपिरेशन करता है? बोलो। बोलो ठीक से। ट्रांसपिरेशन Absorb- करता है। Yes, yes, very good. The transpiration, very important line you told. Transpiration, ये हम लोग का NCERT का concept है। ये concept सोचो। Transpiration helps in absorption. But किस टाइप का absorption वो करता है? ये passive absorption में help करता है या active absorption में help करता है? एक्टिव Active absorption. No, passive. only passive absorption करता है। Absorption may be passive, May be active. may be active। और आपका 97-98% क्या होता है? Passive। Only 2-3% क्या होता है? Active. तो एक्टिव absorption बहुत कम होता है। तो उसका मतलब है सेकंड पॉइंट हो गया T/A is equal to 1 or less than 1? Less than 1. Less than Yes, one. क्योंकि पैसिव के साथ एक्टिव भी है। अगर ये पैसिव होता तो एग्जैक्टली 1 होता, ये थोड़ा सा 1 से कम होगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना 100/97 और 97/100, 97/100। जितना पैसिव है उतना, जितना पैसिव ऑब्जर्वेशन है उतना ट्रांसपिरेशन है, उतना जितना ट्रांसपिरेशन है रेट है उतना ऑब्जर्वेशन रेट। ओके, तो व्हिच इंस्ट्रूमेंट कैलकुलेट ट्रांसपिरेशन? आपको याद है? पोरोमीटर। पोरोमीटर मालूम है? मानोमीटर मालूम है? ट्रांसपिरेशन रेट इज कैलकुलेटेड बाय व्हिच इंस्ट्रूमेंट? Odometer. नहीं. पोरोमीटर और पोटोमीटर। बोलो, लिखो। Transpirations. हाँ लिखो, पोटोमीटर कैलकुलेट्स ट्रांसपिरेशन। अगर वो ट्रांसपिरेशन कैलकुलेट करता है तो ऑब्जर्प्शन कैलकुलेट करता है क्या? बोलो। अगर वो ट्रांसपिरेशन, यस, वो Yes, sir. कैलकुलेट करता है। तो हो गया आपका ये 2 पॉइंट्स जो मैंने बताया। Yes, sir. पॉइंट्स अब हो गया। Yes, sir. अब आइए, अब नेक्स्ट पॉइंट में आइए। नेक्स्ट पॉइंट वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, हेलो, लिखो। डिफरेंट processes control spark। spark समझ में आया? Yes, sir. जब ट्रांसपिरेशन होगा तभी स्टेम का थिकनेस अगर हर्बासियस प्लांट होगा तो कम होगा या ज्यादा होगा? कम हो जाएगा। ट्रांसपिरेशन को क्या बोलते हैं? ये जो हो रहा है ये पुलिंग बोलते हैं या पुशिंग बोलते हैं? पुलिंग। Pulling transpiration. Pulling. हाँ, और ये पैसिव होता है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है बताया था अभी? पैसिव होता है। Passive. और जब ट्रांसपिरेशन नहीं होता है और जबरदस्ती पानी उसके अंदर घुसता है तो एक्टिव मेथड होता है। और एक्टिव मेथड में पुलिंग होता है या पुशिंग होता है? Pushing. होता है. हाँ, तो ये पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट करता है। और ये ट्रांसपिरेशन जो पैसिव होता है, ट्रांसपिरेशन टेंशन क्रिएट करता है, पुलिंग क्रिएट करता है। तो ये नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करेगा या पॉजिटिव? पहले लॉस होगा, बाद में पैसे आएगा, तो टेंशन में आदमी रहेगा। और यहाँ पर लॉस नहीं है, जबरदस्ती पानी घुस रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे?
Positive Positive pressure. pressure. तो ये एक पॉजिटिव प्रेशर है, ठीक है। तो शॉर्टकट में आपका बहुत सारे क्वेश्चंस हो गया, इस बार आया था ना ये पॉजिटिव प्रेशर है, आया था कि नहीं। पुलिंग क्या है? नेगेटिव प्रेशर। पुशिंग क्या है? पॉजिटिव प्रेशर। बट ट्रांसपिरेशन में ज्यादा ऑब्जर्वेशन होता है, एक्टिव ऑब्जर्वेशन कम होता है, ठीक है। हो गया, समझ में आ गया सबको? Yes, तो sir. थोड़ा बात कर लेते हैं, एक मिनट बात कर लेते हैं, हु आर देयर, एंड देन फिर बात करेंगे आगे। तो लक्ष्मी, कान्हू समझ में आ रहा है? Yes, sir. मधु, प्रत्युषा आई थिंक, प्रत्युषा, Yes, sir. प्रियंका, राजेश्वरी, स्मृति, शुभम, ठीक है। ओके, आगे चले। Yes, sir. Yes, sir. ओके, आर यू एंजॉयिंग? कुछ इसमें कुछ याद करना है तो उतना ही याद करना है। स्पार्क का फुल फॉर्म, और क्या याद करना है? स्टीफन हेल्स, हु इज द फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी? Stephen Hales. और एक इंस्ट्रूमेंट बताओ जिसमें हम लोग रेट ऑफ ऑब्जर्वेशन या रेट ऑफ Photometer. पोरोमीटर, अगर पोरोमीटर बोलेंगे तो क्या होता है पोरोमीटर में? पोरोमीटर में क्या होता है बोलो? अगर पोरोमीटर हम बोलते हैं तो उसका मतलब क्या है? वो क्या करता है पोरोमीटर? स्टोमाटल साइज को कंट्रोल करता है। तो ये सब करने के बाद हम लोग जा रहे हैं ओरिजिनल सब्जेक्ट में, ओके। डिफरेंट प्रोसेसेस कंट्रोल स्पार्क। तो व्हाट आर दोज प्रोसेसेस बोलो? एक होता है डिफ्यूजन, मालूम है? Yes, sir. वेरी गुड, देखेंगे आज आपका नॉलेज क्या है इसमें। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी होता है। फिर हम आपको और एक प्रोसेस बोल रहे हैं, ऑस्मोसिस भी होता है। Yes, sir. और फिर हम आपको एम्बिविशन बता रहे हैं, एम्बिविशन ये भी होता है कि नहीं? एम्बिविशन Yes, sir. जो ड्राई, डॉर्मेंट, डेड सब्सटेंस टेकिंग वाटर लाइक सीड, लाइक वुड, तो इसको एम्बिविशन बोलते हैं। और भी प्रोसेस है उसको Plasmolysis. यस, प्लाज्मोलाइसिस भी ऑस्मोसिस का पार्ट है। तो ऑस्मोसिस के अंदर हो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फिर ऑस्मोसिस, एम्बिविशन। इसको छोड़ के और एक प्रोसेस होता है, एक्टिव होता है ना, एक्टिव ऑब्जर्वेशन होता है कि नहीं? एक्टिव ऑब्जर्वेशन होता है, बिकॉज ऑल दीज प्रोसेसेस एक्टिव और पैसिव। Passive. Passive. यहाँ तक पैसिव था, और एक है एक्टिव ऑब्जर्वेशन भी होता है। मिनरल्स जब ऑब्जर्व होता है तो एनर्जी खर्च होता है। एक्टिव का मतलब है एटीपी इज कंज्यूम्ड, एटीपी Energy loss. इज कंज्यूम्ड, एनर्जी लॉस होता है या कंज्यूम होगा। और पैसिव में क्या होता है? एटीपी इज नॉट कंज्यूम, एटीपी इज नॉट कंज्यूम, ठीक है। राजेश्वरी समझ में आ रहे? एटीपी इज नॉट कंज्यूम्ड। आगे चले, हेलो। Yes, sir. तो हम लोग क्या करेंगे अभी? कहाँ से शुरू करेंगे? कहाँ से शुरू करेंगे? यस, डिफ्यूजन। देन हम शुरू करेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। मैं आपको डिफरेंट वे में पढ़ाऊंगा, नॉट ओनली दिस, आई विल गो फॉर पीपीटी आल्सो, ठीक है। तो पहले आप डिफ्यूजन में कितना दम है थोड़ा देख लेते हैं आप लोग का। सपोज हम लोग सब इस रूम में है, कितने सारे बच्चे इस रूम में हो बोलो? कितने सारे बच्चे इस रूम में हो? बोलो। अरे 10। 9. नहीं, बच्चे मतलब participants. हाँ नहीं, मुझे भी मिला लो, ओके। 10 बच्चे हैं। और दूसरे रूम में, हाँ दूसरे रूम में सपोज 2 बच्चे हैं, सपोज और एक रूम में और तो हम लोग उस रूम में चले जाएंगे या वो 2 बच्चा भी इस रूम में आ जाएंगे? बोलो, वो 2 बच्चा भी इस रूम में आ जाएगा कि नहीं? 2 बच्चे। हाँ, इस रूम में भी आ जाएंगे। Yes, यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर क्लास चल रहा है, चलो चलते हैं क्लास में, ओके। बट अगर हम लोग आयंस होते या एटम्स होते या मॉलिक्यूल्स होते, ऐसा होता है क्या?
नहीं होता ना, sir. यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक है। तो वही लिखते हैं, तो लिखो वही, मूवमेंट ऑफ आयंस। हम लोग आयंस नहीं है, हम लोग ह्यूमन बीइंग है। आपको इंट्रोडक्टरी चैप्टर में बताया था मैं, मूवमेंट ऑफ आयंस एटम्स, हम लोग ऑर्गेनिज्म है, ओके। मूवमेंट ऑफ आयंस एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो मेरे अंदर डिफ्यूजन है, मैं डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स नहीं हूं। तो मूवमेंट्स ऑफ आयंस एटम मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? डिफ्यूजिंग particles, okay, of a solid or liquid or gas। तो लिख लो, मूवमेंट ऑफ आयंस एटम्स मॉलिक्यूल्स, और इसको और क्या बोलते हैं? डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स ऑफ ए सॉलिड, लिक्विड और गैस from its higher concentration. To lower concentration. Yes, from its higher concentration to its lower concentration, to low concentration or lower concentration. So can I say it is uphill or downhill? Downhill. Yes, इसको downhill बोलते हैं ना, हायर से लोअर, हिल का हायर से लोअर क्या बोलेंगे? डाउनहिल बोलेंगे ना, और लोअर से हायर क्या बोलेंगे? अपहिल बोलेंगे। Uphill. बस ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। अब आप मुझे बताओ, लेट अस कंसीडर इट एज आर। आर क्या है? रेट ऑफ डिफ्यूजन। रेट ऑफ डिफ्यूजन ये किसके साथ कनेक्टेड है? टी के साथ है कि नहीं? Yes, sir. ई क्या है? Temperature. टेम्परेचर इन व्हिच स्केल? टेम्परेचर इन एब्सोल्यूट स्केल, Absolute. जैसे केल्विन होता है। क्योंकि आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस मालूम है, जहां पर आपने मुझे बताया था कि जब -0 डिग्री केल्विन हो जाता है, ओके, तब नेट मॉलिक्यूलर मोशन 0 हो जाता है। उसके बाद इंक्रीज होता है काइनेटिक एनर्जी, तभी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता है। फिर बोलो, आर इज inversely proportional to square root of d. Do you know this or not? Yes, अरे sir. ग्राम, इस लॉ को क्या बोलते हैं? Gram's law. ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो वहां पर d का मतलब क्या है बोलो? डिफ्यूजन। तो आगे चलते हैं। d का मतलब क्या है? डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स, करेक्ट और नॉट? यस सर। Yes, sir. डेंसिटी ऑफ सर डिफ्यूजिंग, प्रीवियस थोड़ा निकाल देंगे। हाँ श्योर। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, टेम्परेचर इन एब्सोल्यूट स्केल। हो गया? 1 मिनट। हाँ ठीक है, ठीक है ना। ये सब कंसंट्रेट करो, मेरे अंदर डिफ्यूजन है, बट मैं डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स नहीं हूँ, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट, और एक पॉइंट मैंने बताया कि डिफ्यूजन, हाँ, डिफ्यूजन कहाँ पर रैपिड होगा? सॉलिड में, लिक्विड में या गैस में? Gas में, gas में. Yes. हाँ, सपोज किसी को थप्पड़ मारना है, तो मिट्टी के ऊपर एयर मीडियम में थप्पड़ मारने से उसको ज्यादा लगेगा, या पानी के अंदर लेके मारने से थप्पड़ ज्यादा जोर से लगेगा? हवा में। Air medium. बिकॉज एयर में क्या होता है? तो ये आपका हो गया, ये समझ में आ गया। सपोज आपका कोई फ्रेंड एक अच्छा डिओ मार के आया है, सपोज, तो वो हम लोग के पास आ जाएगा कि नहीं? हम लोग तो एक रूम में है, पर अभी एक रूम में है कि नहीं? जूम का एक रूम में है। तो डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट, इसको क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट। जितना कड़क होगा
उतना पहुंच जाएगा। जितना जितना लो परफ्यूम होगा, तो सपोज आप एक रूम में जा रहे हो जिसमें आपको पोस्टमार्टम करना है, तो खुद परफ्यूम मार के जाना चाहिए कि नहीं? आपका जो रुमाल में उसमें परफ्यूम मारने से ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो उसका ग्रेडियंट आपके पास बहुत रैपिडली आएगा कि नहीं? ठीक है, Yes, sir. sir. वही। हाँ, तो जितना ज्यादा ग्रेडियंट उतना ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, ये भी हो गया। तो प्रेशर पर डिपेंड करता है, ग्रेडियंट पर डिपेंड करता है, डेंसिटी ऑफ द डिफ्यूजन पार्टिकल्स पर भी डिपेंड करता है। तो एक प्रॉब्लम देते हैं, चलो चेक करते हैं कि आप लोग को मालूम है कि नहीं। तो एक प्रॉब्लम लिखो, क्वेश्चन नंबर 1, टू गैसेस लो, A and B, गैस A and गैस B। उसके बाद लिखो गैस A का रेट कितना था, R1, गैस B का कितना था रेट ऑफ डिफ्यूजन, R2, गैस A का डेंसिटी क्या था, D1, गैस B का डेंसिटी कितना था, D2। अब बताओ, इफ R1 by R2 is 1/4, then D1 by D2 will be how much? Quick. So 2/1. Yes, 2/1 होगा। Yes, sir. 2/1. हाँ, how many are answering 2/1? ये density of particles है, okay? Density। तो how many are saying 2/1? आपका है 2/1 आंसर, okay? और हम बोलें कि ये गलत है, चेक कर लेते हैं। तो R1 by R2 solution लिखो। R1 by R2, you are saying square root of D2 by D1, correct? 1. Yes, sir. You are Yes, saying sir. it is 1/4. That implies D2 by D1 will be 1/16. That implies D1 by D2 16/1 होगा ना? हेलो, Yes, sir. आप Yes, लोग sir. हाँ देखो सबको कैसे हमने हमारा फास्ट बॉल में बोल्ड कर दिया सबको। ठीक है, नहीं किसी का आंसर अलग कुछ था क्या? यही था ना, क्योंकि हम लोग को लग रहा है कि 4 है, 4 का स्क्वायर रूट ओवर इजी होगा, बट एक्चुअली उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज से क्या करना, राइट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर। तो फिजिक्स में और एक क्वेश्चन ज्यादा करेक्ट होगा। ठीक है, हेलो, फिजिक्स Yes, sir. केमिस्ट्री में हाँ और एक क्वेश्चन ज्यादा करेक्ट होगा। ये हो गया आपका, इसको कट कर दो और ये लिख लो। तो सबको समझ में आ गया ये? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आगे चलते हैं। तो हम लोग क्या बोले आपको, रेट ऑफ डिफ्यूजन सब लिख लिया ना इसको ठीक से? उसके Yes, बाद Yes, sir. sir. फिर आपने ये बोला, फिर आपने ये भी बोला था, बट आज पर योर एनसीईआरटी बुक, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन? बोलो। Solute concentration. एक है प्रेशर, Temperature. एक है प्रेशर, Temperature. सेकंड है ग्रेडियंट, थर्ड है टेम्परेचर। टेम्परेचर है आपका बुक में, ओके? टेम्परेचर, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना होगा। एंड और एक है, अगर वो परमेबिलिटी नहीं है, परमेबिलिटी पर डिपेंड करता है ना, अगर वो दोनों परमेबल नहीं है तो पानी अंदर कैसे आएगा या सब्सटेंस कैसे मूव करेगा? अगर वो सॉल्युबल नहीं है, परमेबल नहीं है, तो कैसे होगा? तो परमेबिलिटी पर भी डिपेंड करता है। ओके, और एक क्या है बताया था, डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ डिफ्यूजिंग Diffusing particle. पार्टिकल्स। ठीक है, तो कुछ एनसीईआरटी का है, कुछ एनसीईआरटी का बाहर होगा, बट आप कंसंट्रेट कर सकते हो।
आप थोड़ा एग्जाम्पल्स बताओ, एग्जाम्पल्स ऑफ डिफ्यूजन बताओ। जैसे आप रोड में जा रहे हो, एक सुगंध आ रहा है, ओके, कोई चीज का सुगंध आ रहा है, समझ में आ रहा है, कहीं से अच्छा स्मेल आ रहा है, तो वो जो फ्लावर आपका मुंह में आपने डाला क्या? नो, दूर में फ्लावर है, आप रोड में जा रहे हो और अच्छा स्मेल आ रहा है कि नहीं? तो कैसे आ रहा है बताओ? तो डिफ्यूजन। हाँ, अच्छा, तो स्प्रेडिंग ऑफ अरोमा, अच्छा स्मेल को क्या बोलते हैं? अरोमा। एरोमा। फॉर pollination, attracting substances for pollination and dispersal. अगर फ्रूट होगा तो डिस्पर्सल, अगर फ्लावर होगा तो पॉलिनेशन होता है। pollination. सेकेंड पॉइंट, और कैसे होता है? गैसियस एक्सचेंज, ये इंपॉर्टेंट होता है। गैसियस एक्सचेंज कहीं पर होगा तो ये प्योर केस ऑफ डिफ्यूजन है। कहीं पर भी अगर गैसियस एक्सचेंज है, दैट इज द प्योर केस ऑफ डिफ्यूजन। आपको ट्रांसपिरेशन याद है? ट्रांसपिरेशन, Yes, sir. ट्रांसपिरेशन भी एक डिफ्यूजन है ना, क्योंकि उसमें Yes, भी sir. वेपर्स बाहर आता है। ऑस्मोसिस पानी का डिफ्यूजन है कि नहीं? ऑस्मोसिस इज नथिंग बट डिफ्यूजन ऑफ वाटर। बाकी कुछ मूव कर नहीं करेगा और डिफ्यूजन करता है। इम्बिबिशन भी पानी का डिफ्यूजन है कि नहीं? डिफ्यूजन ऑफ वाटर, इम्बिबिशन भी होता है। तो ऐसे बहुत सारे स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन भी होता है और डिफ्यूजन भी होता है। ओके, आपने चाय बनाया और चाय में अगर अच्छे से अगर उसको मिलाओगे चाय में, तो क्या होता है? चीनी, शक्कर अगर मिलाओगे, तो शुगर अगर ठीक से मिलाओगे तो स्टार्टिंग में जितना मीठा होगा लास्ट को भी उतना मीठा होता है। ठीक है, समझ में आया? बट अगर आपने वहां पर समझ में आया आपको? अगर Yes, sir. यस आपने सर। और अगर आपने अच्छे से चीनी नहीं मिलाया तो इक्वल, तो वो चीनी, शुगर या शक्कर जब मिल्क पानी के अंदर, चाय के अंदर घुल मिल जाता है, वो भी डिफ्यूजन है। बट वो बायोलॉजिकली में बताया, ये सब बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस बताया। ठीक है, ठीक है। तो Yes, sir. पॉलिनेशन, Yes, sir. पॉलिनेशन क्यों चाहिए? फर्टिलाइजेशन के लिए। टारगेट क्या है पॉलिनेशन का? फर्टिलाइजेशन के लिए। और डिस्पर्सल आपको क्यों चाहिए? स्प्रेडिंग के लिए। सीड्स अब दूर दूर जाएगा तो स्प्रेडिंग करेगा कि नहीं? तो ये स्प्रेडिंग के लिए। बस, डिफ्यूजन ओवर। आगे चले? यस सर। ओके, सर 1 मिनट स्क्रीन हाँ, तो आपका एक, हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। आपका एक क्वेश्चन आता है कि जो हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस है वो कैसे जाएंगे? अगर कैसे लिपिड होगा? है, अगर लिपिड है तो लिपिड चला जाएगा इजीली। सपोज हम लोग इससे एक मेम्ब्रेन बनाया, ठीक है, मेम्ब्रेन किसका कंटिन्यूटी है? लिपिड का। ये जो मेम्ब्रेन है ये किसका कंटिन्यूटी है? लिपिड का यस सर, कंटिन्यूटी। लिपिड। तो जो लिपोफिलिक सब्सटेंस है, इस साइड में देखो, साइड में क्या है? बहुत ज्यादा कुछ सब्सटेंस है और नहीं, कुछ सब्सटेंस है और यहाँ पर कम है, तो इस साइड से इस साइड आ जाएगा। हायर से आ रहा है, हायर से लोअर आ रहा है, और इस सब्सटेंस का नाम है लिपोफिलिक सब्सटेंस। बट अगर वो हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस है वो तो नहीं जा पाएगा, तो उसके लिए आपको एक ओपनिंग चाहिए, पोर चाहिए, ओके, या प्रोटीन चाहिए या कैरियर चाहिए। ठीक है, तो कैरियर में आएगा वो। तो कैरियर में कोई सब्सटेंस आया, यहाँ पर सपोज ये भी ज्यादा है इस साइड में, ओके, इस साइड में ज्यादा है और इस साइड में कम है, तो ये भी आएगा ऐसे, ओके, हायर से लोअर, हायर से लोअर को आता है, ये करेक्ट है। बट इसके लिए इसको क्या चाहिए? एक कैरियर चाहिए। Carrier. कैरियर चाहिए। तो लिखो कैरियर चाहिए, और कैरियर क्या होता है? प्रोटीन होता Protein होता है. प्रोटीन। है। यस, कैरियर क्या होता है? प्रोटीन होता है। बस ये पहले बताओ।
अगर ये इसको अगर हम डिफ्यूजन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये वाला डिफ्यूजन, डिफ्यूजन, तो इसको क्या बोलेंगे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सपोज आपको अमेरिका में नौकरी मिल गया, ठीक है, और आप फर्स्ट टाइम इंडिया आ रहे हो पेरेंट्स से मिलने के लिए, और कोई भी एयरपोर्ट में नहीं है, ओके, तो उसका मतलब कि कोई भी आपको फैसिलिटेट नहीं करता है। समझ में आ रहा है? ऐसे आ Yes. जाओ तो खराब लगेगा कि नहीं हम लोग को? तो हम लोग को क्या चाहिए, फैसिलिटेट चाहिए, इंस्पिरेशन चाहिए, मेंटर चाहिए, कोई अच्छा टीचर मिल जाए जो हमें गाइड करे, तो जिंदगी कितना इंटरेस्टिंग हो जाता है। ठीक है, उसका मतलब कैरियर चाहिए। अगर कैरियर चाहिए या प्रोटीन चाहिए, एक टीचर क्या सबको फैसिलिटेट कर पाएगा? नहीं, वो सिलेक्टिव sir. होगा। हाँ, वो सिलेक्टिव होगा। जैसे मैं, आप सपोज 9 बच्चे हो और आई मे फैसिलिटेट यू, ओके, आई मे फैसिलिटेट यू, क्योंकि आप 9 बच्चे हो, चलो हम फैसिलिटेट कर लेते हैं, ठीक है, बट हम पूरा तो नहीं कर पाएंगे, तो हम जिसको मिलने का चांस है या जो मेरे से कनेक्टेड है उनको फैसिलिटेट कर पाएंगे। तो सिलेक्टिव बच्चे को फैसिलिटेट कर पाएंगे, और मेरा फिर भी एक सैचुरेशन है, तो सैचुरेशन रहेगा या नहीं रहेगा, बोलो? रहेगा। रहेगा। जहाँ पर कैरियर है वहां पर सैचुरेशन है, बट ये हमारा ड्यूटी है, इट इज स्पॉन्टेनियस, ठीक है, इट इज स्पॉन्टेनियस, ये हम बोलते रहेंगे, बट फिर भी नहीं कर पाएंगे। अरे समझ में आया कि नहीं? अगर आप बोलोगे कि सर आपका ये काम नहीं है क्या, यस मेरा काम है, बट हमारा एक लिमिट होता है ना, उस लिमिट के बाहर जाके क्या हम 1 लाख बच्चे को मोबिलाइज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ओके, तो सबका ह्यूमन बीइंग का एक लिमिट होता है। चलो हम 2-3 ऐसे आपका ले लेते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लिपिड क्यों मैंने बोला, बोलो? व्हाई आई टोल्ड यू लिपिड, ये जो मेम्ब्रेन है क्यों लिपिड बोला? अरे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा लेमा बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, और क्या बोलते हैं? प्लाज्मा लेमा। प्लाज्मा लेमा में लिपिड का कंटिन्यूटी होता है और प्रोटीन स्कैटर्ड होता है, ठीक है। प्रोटीन कैसा होता है? स्कैटर्ड होता है। तो जब प्रोटीन स्कैटर्ड होता है, मोजाइक होता है, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ही होगा जो प्रोटीन के। और ये जो कैसे होता है, ये सपोज ऐसा होता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पोर है। और कभी कभी आप पार्क में देखना कि एक आदमी उसके अंदर जा पाएगा, देखना ऐसे होता है कि नहीं? हेलो, यस सर। तो Yes, sir. एक आदमी पूरा ऐसे जाएगा तभी दूसरा आदमी इससे आएगा, ठीक है, तभी जाके दूसरा आदमी इससे आ सकता है, नहीं तो दोनों एक साथ नहीं जा पाएंगे। तो ये गेटेड हो गया, ये तो पोर है। तो पोर हो सकता है, गेटेड हो सकता है, या एक कैरियर भी हो सकता है। कैरियर मतलब जैसे बोट होता है, आप बोट में बैठ के, तो आप ही इस साइड में जब आओगे तभी दूसरा आदमी इस साइड से इधर जाएगा, ठीक है। तो कैरियर होता है, कैरियर समझ में आया? तो कैरियर लेकर आएगा, फिर ड्रॉप करेगा, फिर इस साइड, तो ऐसे भी होता है। वो जो भी हो, ये सिलेक्टिव होता है, सैचुरेशन होता है, और हायर से लोअर होता है, ठीक है। हेलो, यस सर। अब इसको देख के बताओ। आपके घर में एक भयंकर डॉगी है, जोजो, तो वो आपके लिए क्या है? डिफ्यूजन है। और हम लोग के लिए क्या है? फैसिलिटेड। हाँ, अगर हम लोग आपके घर में जाना चाहते थे स्पॉन्टेनियस वे में, फिर हम नहीं जा पाएंगे, कहीं पर घुस जाएंगे तो खा लेगा हमें, ओके, तो हम लोग आपको बुलाएंगे, कैरियर बुलाएंगे, तभी जा पाएंगे, ठीक है। तो सपोज एक आयन है और एक आयन है और एक आता है, ठीक है, एक आयन है और एक कैरियर है, एक कैरियर है और एक ही आयन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक कैरियर है, एक आयन है, यूनिपोर्ट बोलेंगे या यस फूड सर। ट्रांसपोर्ट बोलेंगे? यूनिपोर्ट। Uniport. ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है कि नहीं? यस है। सर। Yes, sir. वेरी गुड। सपोज ये और एक एरिया है,
और यहाँ पर दूसरा एक आयन ऐसे जा रहा है, तो ये यूनिपोर्ट है या एंटीपोर्ट है? Antipode. Antipode. नो 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 नो, यूनिपोर्ट Unipode. ये Unipode. भी यूनिपोर्ट है। एक कैरियर है और एक आयन है, दो कैरियर है, दो आयन है। चलो ऑपोजिट डायरेक्शन है, उनका मर्जी हो जाएंगे। ओके, और ये बताओ, ये बताओ ये क्या होगा? ये ऐसे इधर आ रहा है, ये ऐसे इधर आ रहा है और ये ऐसे इधर जा रहा है, तो इसको Antipode. Antipode. को ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। कॉन्ट्रास्ट को ट्रांसपोर्ट तो है, और इसके साथ साथ दो आयन एक कैरियर है, तो एंटीपोड बोलेंगे। ठीक है, वेरी गुड। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो आयन है, एक कैरियर है, और दोनों एक साइड में जा रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? एंटीपोड बोलेंगे, सिम्पोड बोलेंगे। Sympod. वेरी गुड, इसको हम सिम्पोड बोलते हैं। वेरी गुड, यहाँ तक हो गया सबका? बनाओ बनाओ। और ये जब आपने इस टाइप का किया इधर, तो आपने एक कैटायन दिया, तो दूसरे साइड में आप कैटायन लाओगे या आनायन लाओगे? आनायन हाँ, Anion. क्योंकि आपको इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल बनाना है। हम्म। अगर यहाँ पर कैटायन दोगे तो कैटायन लोगे, या आनायन दोगे तो आनायन लोगे कि नहीं? तो when it is Yes, sir. antipode, it Yes, is sir. about two cations or two anions. But when it is sympod, it is about one cation and one anion usually. क्योंकि इसको सपोर्ट करने के लिए यूनिपोर्ट भी हो सकता है। ठीक है, इसको सपोर्ट करने के लिए यूनिपोर्ट भी हो सकता है ना, इलेक्ट्रिकली बैलेंस करने के लिए। तो यूजुअली एक कैटायन आनायन यूजुअली होता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका? सब Yes, बनाया? sir. सब बनाया कि नहीं? Yes, No. sir. Yes. Yes, sir. वेरी गुड। राजेश्वरी, प्रत्युषा, समझ में आ रहा है Yes, कि sir. नहीं? Yes, sir. ओके, Yes, sir. वेरी गुड। ये पहले बनाओ। और क्यों फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन चाहिए? क्योंकि आपको इंस्पिरेशन चाहिए कि नहीं? हेलो, कितना इजी है? आपको इंस्पिरेशन Yes, sir. चाहिए कि नहीं? और आपको कोई बोल देगा थोड़ा पढ़ लो, अपने आप पढ़ लो, हम लोग को थोड़ा इंस्पिरेशन चाहिए कि नहीं? हम लोग बोलते हैं कोई हमें फैसिलिटेट करे, कोई हमारा मेंटर बने। ओके, चाहे पेरेंट्स हो या चाहे टीचर हो, ये हमारा एक एटीट्यूड होता है, बिकॉज वी आर लिविंग। तो ये सब लिविंग का एटीट्यूड होता है। डिफ्यूजन जो होता है वो लिविंग का नहीं है, ज्यादातर वो नॉन लिविंग का होता है, और लिविंग में भी होता है। गैसियस सेक्शन कैसे होगा? Non-linear. हाँ, ठीक है, आगे चले। हेलो, ठीक है, पहले Yes. बनाओ। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, हाउ इट इज सिमिलर टू, बोलो, हाउ इट इज सिमिलर टू, हाउ इट इज सिमिलर टू एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बोलो। और हाउ इट इज सिमिलर टू डिफ्यूजन, बोलो क्विक। हाउ इट इज सिमिलर टू डिफ्यूजन, बोलो। Movement in facilitated movement is The diffusion, substances are transformed from high but it concentration to lower requires concentration. transportation. यस, डिफ्यूजन में, हेलो, डिफ्यूजन में हम लोग का क्या होता है? हेलो, डिफ्यूजन में हम लोग का क्या होता है, बोलो। डिफ्यूजन में हम लोग का High concentration. हाँ, हायर से लोअर होता है, और मेटाबॉलिक एनर्जी हॉट से Higher नहीं। concentration से High concentration. और हमारा मेटाबॉलिक एनर्जी भी हॉट नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर भी वही होता है। बट डिफ्यूजन में आपको कैरियर चाहिए या नहीं चाहिए? डिफ्यूजन में नहीं No, चाहिए. sir. और यहाँ नहीं चाहिए. पर कैरियर चाहिए। जब कैरियर चाहिए Yes. तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी कैरियर आपको चाहिए। तो जब कैरियर चाहिए तो वो एक्टिव हो गया, और यहाँ पर भी हो जाता है। और जब कैरियर होता है तो आपको मैंने और एक पॉइंट भी बताया था, अगर कैरियर है तो सिलेक्टिव होता है कि नहीं? कैरियर है तो सिलेक्टिव होता Yes. है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir.
Yes, sir. और ट्रांसपोर्ट सैचुरेट होता है कि नहीं, बोलो? Yes, ट्रांसपोर्ट Yes, sir. Yes, sir. ट्रांसपोर्ट सैचुरेट भी होता है। वेरी गुड। तो अभी हम पीपीटी में जाए। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पीपीटी में जाने से आपका ज्यादा क्लैरिटी आएगा और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, और इसको आप भी स्टोर कर सकते हो और हम शेयर भी करेंगे। ओके, इस वीडियो को भी हम शेयर करते हैं ना, वीडियो को भी शेयर करेंगे। लास्ट टाइम एक वीडियो शेयर हुआ था, देखे थे आप लोग? हेलो, कौन सी? नहीं, हम लोग शेयर करेंगे, वीडियो भी ग्रुप में शेयर करें। अगर बाई चांस आप क्लास मिस कर लेते हो या कुछ कर लेते हो तो बाई चांस तो हम लोग शेयर करेंगे, ठीक है? हेलो, Okay, sir. Okay, sir. बट आप मिस मत करना, क्योंकि क्लासरूम में जो एनर्जी होता है, आपका पर्सनल डाउट जो आप पूछ सकते हो, वो आप ग्रुप और ऐसे वीडियो में कैसे पूछोगे ऑल ऑफ सडन? ओके, तो वीडियो एक सेकेंडरी पॉइंट है, तो क्लासरूम आना जरूर। ओके, ठीक है? Yes, समझ sir. आया? ओके, आ जाओ, देखो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो। तो हम लोग यहाँ पर है, अभी इसको स्टोर कर दिया, तो स्टोर कर दिया आपके लिए। फिर हमने यहाँ पर स्टॉप किया, फिर यहाँ पर आए, ये ट्रांसपोर्ट में गए, आ गया वीडियो? आ गया। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Introduction to plant physiology. So there are two perspectives in the description of structure and variation in living organisms. And the two perspectives essentially are connected to levels of organization. And one is organism, जो मैंने बताया था, हमारे अंदर डिफ्यूजन होता है, बट हार्म डिफ्यूजन नहीं होता है। तो मॉलिक्यूल्स, आयंस, एटम्स, ये सब कर सकते हैं डिफ्यूजन, बट हम नहीं करते। तो एक होता है, अगर बियॉन्ड ऑर्गेनिज्म होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? बियॉन्ड ऑर्गेनिज्म अगर होता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, बोलो? तो उसको हम इकोलॉजी बोलते हैं। बियॉन्ड ऑर्गेनिज्म अगर होता है, और जो फंक्शनल एस्पेक्ट होता है उसको हम फिजियोलॉजी बोलते हैं, और जो मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। Biochemistry. तो ये चैप्टर थोड़ा बायोकेमिस्ट्री के साथ भी रिलेटेड है कि नहीं? ये Yes, चैप्टर sir. Yes, sir. और मैंने बताया था आपको, it is also related to transport, mineral division, photosynthesis, respiration, growth, development, and stress physiology also. तो एक साइंटिस्ट थे, सर जगदीश चंद्र बोस, जेसी बोस। ओके, आचार्य जगदीश चंद्र बोस थे। तो उनको फेलोशिप मिला था ना, तो उन्होंने उनको फादर ऑफ इंडियन फिजियोलॉजी बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं, बोलो? Father of Indian physiology. Who is the father of physiology, plant physiology? Indian plant physiology इनको बोलते हैं। Who is the father of plant physiology? बताया था? Any of you will say? Stephen Hales. Stephen Hales. Stephen Hales. Good. तो इनका ये father of, तो उन्होंने पहले डेमोन्स्ट्रेटर के हिसाब से बहुत छोटा जॉब किया था, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने नॉलेज में बहुत कुछ उन्होंने कर लिया। तो वो उनके बारे में थोड़ा यहाँ पर दिया है। और उन्होंने भी पल्सेशन थ्योरी क्रिएट किया था। उन्होंने बोला हार्ट जैसे बीट करता है ऐसे ही पानी ऊपर जाता है। बट इज इट करेक्ट और रॉन्ग? हम लोग के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम है क्या प्लांट के अंदर? हम लोग के अंदर नहीं, है। प्लांट के अंदर नहीं है। हाँ, हम लोग के अंदर है, बट प्लांट के अंदर नहीं है। ठीक है? Yes, sir. और प्लांट के अंदर नर्वस सिस्टम है? नहीं, No, sir. नहीं। वेरी No, गुड। कानू, प्लांट के अंदर नर्वस सिस्टम है क्या? शुभम?
है स्नेहा? नहीं सर। यस, नहीं होता No, है। sir. वेरी गुड। क्यों नहीं होता है? अरे प्लांट नर्वस हो जाएगा क्या? उनका नर्वस सिस्टम तो नहीं होता है। अगर आप टच मी नॉट प्लांट बोलोगे वो टर्गर चेंज है, बट उनके अंदर भी नहीं है। और इसके साथ साथ उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया था, उसका नाम था क्रेस्कोग्राफ, जिसमें आप ग्रोथ को पर मिनट में भी कैलकुलेट कर पाओगे। ये थोड़ा ज्यादा हाई फाई थे, जैसे स्कैनिंग फैनिंग करते हैं ना, इस टाइप का साइंटिस्ट थे, हेल्प करते थे प्लांट को। ओके, so in addition to that, Bose Research Institute in Kolkata, he also authored several books like research on irritability. Irritability मतलब how plants respond. Irritability है ना, consciousness of living का character है कि नहीं? Hello. How Yes, sir. Yes, sir. नर्वस मैकेनिज्म, पागल टाइप का, और भी थोड़ा आगे चले गए और बोले कि नर्वस मैकेनिज्म है। आज हम लोग पागल बोले, बट उस टाइम इट वाज अम्यूजिंग। People are amused. Even in Vedic Upanishad, it is believed plants are nervous system. They can understand. Okay. अब आ जाइए इंट्रोडक्शन में। Plants do not have circulatory system. Over. Yes. So how they will reach higher side? कैसे जाएंगे? ये क्वेश्चन मार्क्स आ गया सबके माइंड में। तो कैसे जाएंगे? Through transpiration. Yes. Transpiration. ट्रांसपिरेशन के कारण जाएंगे या वास्कुलेचर के कारण जाएंगे। ओके, ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस, वास्कुलेचर, ये सब उनको हेल्प करता है। डिमांड क्रिएट करता है, ये तो हेल्प करता है। ठीक है, ओके। ट्रांसपिरेशन इज द मेन रीजन। और वाटर में सॉल्युबल होके मेनी सब्सटेंस आर मूविंग। फोटोसिंथेसिस मतलब शुगर, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है। It is moving to different parts deep inside the soil, and that is by phloem. The movements may be short distance, like within the cell, between the cells, across the cell, from cell to cell, within the tissue, or long distance by the help of vasculature होता है कि नहीं? बोलो सब। Yes, sir. Okay, very good. तो ये हम शेयर कर लेंगे ग्रुप में, डोंट वरी। So in a flowering plants, the substances that would need to be transported are water, mineral nutrients, organic nutrients, and plant growth regulator. Plant growth regulator का मतलब क्या है? बोलो। Which helps in the plant growth. Plant growth. Yes, hormone, phytohormone. Yes. Growth regulator होते हैं। फाइटोलॉजी, आज से क्या बोलना है इसको? फाइटोलॉजी बोलना। बॉटनी को क्या बोलोगे? फाइटोलॉजी। तो मैं यहाँ पर थोड़ा लिख लेता हूँ। बायोलॉजी का 3 ब्रांच है, उसको अगर कवर करना है तो क्या बोलोगे? एक होता है फाइटोलॉजी, सब बोलो, व्हाट इज फाइटोलॉजी? प्लांट्स, देन जूलॉजी, एनिमल्स, Animals. देन माइक्रोबायोलॉजी, Microbes. microbes. Very good. Microbes. Microbiology. So in a flowering plant, the substances that would need to be transported are water, minerals, वो photosynthesis के लिए चाहिए, फिर खाना बन गया, फिर वो different parts में आना चाहिए, ओके, फिर ग्रोथ रेगुलेटर को भी different parts में जाना चाहिए। ठीक है, हेलो, आगे चले? Yes, sir. ओके, आज से बॉटनी को क्या बोलते हैं? बोलो। Phytology. The small distance moved by diffusion and by cytoplasmic streaming, active transport, active खर्च होता है। ये low to higher है कि नहीं? हेलो, जब आप low Yes, sir. to Yes, higher sir. होगा तो भी आपको एनर्जी देना पड़ेगा कि नहीं? हेलो, remember Yes, any pumps are active or passive? जैसे pushing बोले थे, pumping Active. pouring एक्टिव और पैसिव। pouring ऑफ शुगर, जबरदस्ती उसके ऊपर और भी पोर करना है, pouring ऑफ शुगर। Passive. Passive. नो, pouring एक्टिव Active होगा. है और उसके ऊपर और भी डालना है, pouring एक्टिव। ठीक है, तो ये कुछ एक्टिव के बारे में हमने बताया। आगे चले? Yes, Yes, sir. sir.
You know this. Okay? You know this. तो ट्रांसपोर्ट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? Translocation. Transposition. हाँ, तो ये पूरा याद हो जाता है ना, एनसीईआरटी पूरा माइंड में घुस जाता है कि नहीं आपका माइंड में? Yes, sir. तो हम कुछ भी काम आपके लिए नहीं रहेगा, सब मेरे लिए रहेगा, बट आपका माइंड में अगर एक बार घुस गया, अगर वहां से निकल जाता है तो प्रॉब्लम है, बट आप क्वेश्चन आंसर बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो इन रूटेड प्लांट ट्रांसपोर्ट्स थ्रू जाइलेम, वाटर अनमिनस मूव करता है, ये यूनिडायरेक्शनल होता है या बाई डायरेक्शनल होता है? ट्रांसपिरेशन फुल, Unidirect. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और organic and mineral nutrition undergo multi-directional transport through phloem or not? Yes, sir. sir. Yes, sir. They are moving through phloem. Good, good. ये देखो, organic compounds synthesized in the photogen leaves are expected to go everywhere or not? But जो Yes, भी हो, everywhere. वो सोर्स से सिंक जाता है कि नहीं? सोर्स से सिंक, चाहे सिंक ऊपर हो चाहे नीचे हो, कहीं पर हो, सोर्स से सिंक, जहां से बनता है दूसरे एरिया में जाता है, ठीक है? सिंक एरिया। तो सोर्स टू सिंक यूनिडायरेक्शनल, बट सिंक ऊपर भी हो सकता है नीचे, तो यूनिडायरेक्शनल होगा या मल्टी डायरेक्शनल होगा? Multi-directional. Directional. वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, अगेन फ्रॉम स्टोरेज पार्ट दे आर री-एक्सपोर्टेड। तो मिनरल ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? By the roots and transported upward in the stem, leaves and other going. When any plant parts undergo sun, जब old हो जाते हैं, वहां से substance बाहर आ जाता है कि नहीं? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. तो हम young part को, तो yellowing हो जाता है, वहां से substance लेके हम young part को दे देते हैं, ओके? वहां से substance young part को चला जाता है। फिर हमने क्या बोला था आपका बुक में? हार्मोन्स एंड ग्रोथ रेगुलेटर्स एंड chemicals are also transported, though it is in very small amount. Okay. Differently, each organ receives some substance and giving out some other substances. ठीक है? तो आप बताओ, will answer. थोड़ा चेक करते हैं, will answer. इजी क्वेश्चन होगा। Kanhu, can you answer? कोई भी बोलो, नो प्रॉब्लम। Roots. Roots. Rajeshwari, good. Madhu, good. Lakshmi also good. आप तीनों का करेक्ट है। और बाद में क्या Sir, होगा? even I said. ना, हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। प्रत्युष सर, आप भी बोल सकते हो। ट्रांसपोर्ट थ्रू जाइलम इज यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल? Unidirectional. Directional. यस यस यस। अभी क्या हो रहा है कि आपको बोलना है, बट फिर बाद में हम क्या करेंगे ना, चैटिंग कर लेंगे, और चैटिंग टू ओनली टू मी कर लेना, ठीक है? तो आई चेक इट आउट कि हु मेड इट करेक्ट। अभी आज फर्स्ट क्लास में आप थोड़ा एनर्जेटिक वे में बात करो, कोई भी बोलो। ट्रांसपोर्ट थ्रू फ्लोएम इज एसेंशियली Bidirectional. Bidirectional. Multidirectional. और दोनों भी है। हाँ, bidirectional and multidirectional. 1 and 3. हाँ, 1 and 3. 1 and 3. यस, 1 and 3, वेरी गुड। ओके, तो फर्स्ट पार्ट ओवर हो गया हम लोग का, ठीक है? अब सेकेंड पार्ट में जाएंगे। इसको क्लोज करता हूँ, फिर सेकेंड पार्ट में जाएंगे। हेलो, Yes, sir. और करोगे Yes, कि sir. नहीं? और करोगे ना इतना ही? और और करेंगे? करेंगे। और करेंगे सर। हाँ, कब आपसे बात करते करते टाइम खत्म हो जाता है, मुझे टाइम पता नहीं चलता। हेलो, आपको पता चलता है बहुत टाइम हो गया, 1 घंटा हो गया, पता चला? नहीं सर। No, sir. हाँ, मैं उसमें पूरा गुरु हूँ। मैं इस टाइप का इतना जल्दी पढ़ा दे, मैंने टाइम पता नहीं चलेगा आपको, मेरे क्लास में पता नहीं चलेगा आपको। हाँ, डिफ्यूजन एक्टिव होता है या पैसिव होता है? बोलो बोलो। Passive. Passive. वेरी गुड। इसको भी स्टोर कर देते हैं क्योंकि यू वांट टू टेक ना, इसको स्टोर कर देते हैं, ठीक है? ओके,
उसके आगे उसके आगे बोलो. It may be interstellar, it may be. तो no energy खर्च होता है. Molecules move randomly. Molecules move from higher to lower, downhill or uphill. Yes, Down. sir. Downhill. Downhill. जब एनर्जी नहीं देते हो कोई भी प्रोसेस क्या होता है अपने Slow हो आप जाती. Slow. Slow. यस कोई भी प्रोसेस अगर एनर्जी नहीं देते तो क्या होता है स्लो हो जाता है. हम हो बोलते हैं कि अपने आप होगा तो स्लो हो जाएगा. अपने आप मेरा इच्छा होगा पढ़ने के लिए ऐसा नहीं होता है. तो एनर्जी थोड़ा देना पड़ता है. ये देखो कलर चेंज हो गया कि नहीं. थोड़ा सा कलर डाल दिए होली वाला कलर और ये कलर हो गया. बट ये ऑलवेज रूल क्या है हायर टू लोअर डाउनहिल है कि नहीं. यहाँ पर Yes. परफ्यूम बटल ओपन कर दिया या अगरबत्ती जलाया तो चारों तरफ मूव करता है कि नहीं. वेरी गुड. ये डिफ्यूजन. तो ज्यादा गैसियस लिक्विड में ज्यादा होता है सॉलिड में थोड़ा स्लो होता है. ये करेक्ट है. So what are the factors which are affecting? तो जब Concentration gradient, temperature. हाँ ये क्वेश्चन आएगा आपका. गैसियस मूवमेंट के लिए डिफ्यूजन इज द ओनली वे. वहां पर तो ट्रांसपिरेशन नहीं है. वहां पर तो असेंट ऑफ शेप नहीं होता है. वहां पर ट्रांसपिरेशन. तो फैक्टर्स क्या क्या होता है. परमेबिलिटी, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. ये आपका बुक में है कि नहीं. ये सब है ना बुक. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड. तो इसको हम क्लियर कर देते हैं. और ये पूरा बुक आपका माइंड में आ गया कि नहीं अपने आप. Yes, sir. चेक करना. अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ. अब चेक करना. फर्स्ट पेज ओवर, सेकंड पेज भी ओवर. अभी सेकंड पेज का हाफ से शुरू हो रहा है. व्हाट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. हायर टू लोअर होगा, पैसिव होगा with the help of dash, the help of protein. Protein. It's called with the help of protein, which higher से lower. इससे सेल के अंदर आए. सब कुछ मेम्ब्रेन और सेल के साथ कनेक्टेड है. डिफ्यूजन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ज्यादातर क्या होता है मेम्ब्रेन के साथ कनेक्ट. जब कब तक ये चलेगा जब दोनों साइड बराबर ना हो. ठीक है. जब तक वो यूनिफॉर्मली The diffusion of any substance across the membrane also depends on its solubility. The lipid, जो substance soluble lipid diffuse through the membrane faster, क्योंकि उनके लिए वो facilitated नहीं है, चारों तरफ ओपन है. ठीक है. क्योंकि लिपिड उनको प्रोटेक्ट नहीं करता है. there is no resistance. but जो हाइड्रोफिलिक होते हैं वो कैसे जाए. तो that was the question. यही था ना. हेलो. Yes, Yes, sir. sir. आपके घर में आप जाओगे तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा या डिफ्यूजन होगा. कोई आके आपको वेलकम करके लेगा. Diffusion होगा. जब हम आपके घर जाएंगे जब आपको मेडिकल मिल जाएगा तभी क्या होगा. Facilitated. Facilitated. हाँ मैं जाऊंगा फिर भी आप बोलोगे सर आइए सर आइए सर आइए. ऐसे बोलते हो कि नहीं. हेलो. इस तरह आइए. Yes, sir. ऐसे बोलोगे. तो सो देयर मूवमेंट हैज टू बी. तो मैं खाना रख लिया मेरे सामने. मैं खाऊंगा नहीं खाऊंगा वो तो बाद में पता चलेगा. बट फिर आप बार बार बोलोगे सर थोड़ा खा लीजिए खा लीजिए. ऐसे बोलते हैं कि नहीं. गेस्ट आते हैं जब तो फैसिलिटेट करना पड़ता है. अगर खाना भी रख लिया फिर भी वो नहीं खाएंगे जब तक आप नहीं बोलोगे. ओके. ऐसे होता है कि नहीं. हेलो. Yes, sir. Yes, sir. So their movement has to be facilitated. Membrane proteins provide site at which such molecules cross the membrane. तो एक एक एरिया होता है. कहाँ पर वो मूव करते हैं बोलो. प्रोटीन एरिया में. कहाँ पर वो मूव करते हैं. Protein area. प्रोटीन एरिया में मूव करते हैं. ओके. तो membrane proteins do not set up a concentration gradient. A concentration gradient must already be present for the molecules to diffuse even if facilitated by the proteins. So there must be a gradient. There must be from higher to lower. Correct?
there must be from higher to lower, correct or not? Downhill or not, correct or not? Yes, sir. Correct. So in a facilitated diffusion, special protein help to move substance across the membrane without expenditure of energy. Over. ये मालूम है आपको? लोड टू हायर नहीं करता है, हायर टू लोअर करता है. ठीक है, चलते हैं आगे. यू कैन गेट इट. हाँ, दिस ग्राफ इज वेरी इंटरेस्टिंग ग्राफ. देखो कहां पर सैचुरेशन आएगा बोलो? डिफ्यूजन में नहीं आता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में आता है, करेक्ट? Yes, Yes. sir. बस बस, ये अच्छा डायग्राम है. ये आएगा तो अच्छा क्वेश्चन बोलेंगे. ओके, ये आना चाहिए. ठीक है, इनडायरेक्ट है बट अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं? हेलो, ये ग्राफ, इसमें ए Yes. लिखा होगा. Yes, sir. हाँ, इसमें ए लिखा होगा और इसमें बी लिखा होगा. तो आइडेंटिफाई. तो बच्चे करें, अरे ग्राफ कहाँ से आ गया? अरे ये सैचुरेशन में आता है. यहाँ पर ये सब नहीं रहेगा, ओनली सैचुरेशन रहेगा या कुछ भी नहीं रहेगा तो भी सैचुरेशन है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो इंटरेस्टिंग ग्राफ है कि नहीं? Yes, sir. हमने आपको ये इंटरेस्टिंग ग्राफ दिया, इसको याद रखना. ओके, दिस इज माय गिफ्ट फॉर न्यू ईयर्स. द ट्रांसपोर्ट सैचुरेट्स. यहाँ पर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन स्पेसिफिक होगा, बताया था. Yes, sir. और Yes, प्रोटीन होता है, प्रोटीन होता है. ओके, कानू समझ में आ रहा है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स. अगर कोई इनहिबिटर्स आएगा वो डिस्ट्रॉय कर सकता है. सपोज मैं आपके घर में चाय के लिए जा रहा हूँ क्योंकि आपको मेडिकल मिल गया, तो कोई बोलेगा कि नहीं आज सर को बुलाओ मत, आज थोड़ा घर में और कोई गेस्ट आएंगे, तो इनहिबिटर्स हो गए तो हम नहीं जाएंगे. ओके, बट डिफ्यूजन में ज्यादा प्रॉब्लम होता है क्या? आपको कोई मना कर सकता है क्या? नो. द प्रोटीन No, टनल्स और चैनल्स होता है ना, बताया था. बताया था, याद है कि नहीं? हेलो. yes, sir. Height. चैनल्स और टनल्स होता है. उसके बाद ये फोटोग्राफ्स यहाँ पर होने से कितना अच्छा लगता है. देखो, टीचर जैसे क्लासरूम में ऐसे लगता है कि नहीं? हेलो. Yes, sir. Yes, sir. Some Yes, sir. channels are always open and others can be controlled. Okay, तो हम आपको आज थोड़ा नहीं बोले, बट हम लोग भी पूरा क्लासरूम वन रहेगा. सब बच्चे का कैमरा, आप अपना बैकग्राउंड, अपना रूम ठीक ठाक रखना. ओके, so that we can Okay, switch on the camera and तो क्लासरूम जैसे लगे. एंड आपस में आप अपने आप को देख सकते हो, बाकी फ्रेंड्स को भी देख सकते हो. नहीं तो आप ऐसे एक ग्रुप हो बट उस ग्रुप का कुछ मतलब नहीं. तो पोरेंस क्या है? जिसमें पोर होगा उसको क्या बोलते हैं? पोरेन बोलते हैं. Korean. जिसमें पोर होगा उसको पोरेन बोलते हैं. तो माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन में ज्यादा पोरीन है या आउटर मेम्ब्रेन में ज्यादा पोरीन है? एनीबॉडी क्लास के अंदर? Outer. Outer membrane. यस, तो घुस जाता है. जैसे ये आपका स्कूल है, यहाँ पर आइडेंटिटी कार्ड चेक होता है. ठीक है, और ये आपका क्लासरूम है. ठीक है, तो यहाँ से आने के बाद यहाँ पर आप घुस जाते हो कि नहीं? नहीं, यहाँ पर भी चेक होता है क्या? क्लास कैप्टन चेक करता है क्या? No. No, sir. नहीं. हाँ, आप प्रिंसिपल के रूम में जाओ तो प्रिंसिपल रूम में नहीं जा पाओगे. अगर प्रिंसिपल रूम में जाओगे तो क्या होता है बोलो? तो वहां पर और एक बार चेक होगा ना, क्या काम है, कोई और एक दूसरा आदमी रहेगा कि नहीं? तो थोड़ा लेस फॉर्मेबल होता है इनर मेम्ब्रेन. बट आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर अलाउ कर दिया तो आउटर मेम्ब्रेन क्या करेगा? अलाउ कर देगा. बट इनर मेम्ब्रेन अलाउ नहीं करेगा क्योंकि पोरेंस ज्यादा आउटर मेम्ब्रेन में है, इनर मेम्ब्रेन में कम है या वेरी लेस है. तो कहां पर जाओगे आप? वो F0 F1 टनल में जाओगे. ठीक है, तो जब पानी जाता है उस टाइप का जो पोरिन को हम क्या बोलते हैं? बोलो, एंशिएटिव बुक का Aquaporine. Aquaporine. और कितना एक्वापोरिन है? Eight. यस, 8. 8 एक्वापोरिन्स आर देयर. देखो 8 एक्वापोरिन्स यहाँ पर मैंने लिखा
और आपको भी ये पता है, ठीक है। हेलो, समझ में आया? Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके ओके, वेरी गुड। The extracellular molecules bound to transport protein and transport protein rotates and release the molecules inside। में बोला था एक बोट बनाया था कि नहीं, वो इधर से इधर आदमी को इधर से उधर हाँ ट्रांसफर करता है। और फिर पार्क में मैंने ऐसे कुछ बनाया था कि नहीं, पार्क में ऐसे कुछ बनाया था, याद है? पार्क में, अरे पार्क में बनाया था ना, आप भूल गए? ऐसे बनाया था, ऐसे एक होता है ना, तो कोई आदमी Yes, sir. Yes, sir. ओके, वेरी गुड। आप लोग काफी इंटरेस्टेड बच्चे हो, मतलब इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट होने से हो जाएगा। जो विद्या को लाइक करते हैं उनको विद्या मिलता है, ऐसे एक लाइन है ना। Yes, sir. ये हो गया आपका। आ रहा है। एक आयन एक टनल, है ना कन्नू? एक आयन एक टनल। मधु, एक Yes, आयन sir. एक टनल। शुभम, चल रहा है कि नहीं? स्मृति, Yes, sir. Yes, sir. एक आयन एक टनल, वेरी गुड। इसको इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं? और एक बार देख लो। Yes, sir. ओके, यूनिपुट बोलते हैं। और को ट्रांसपोर्ट में हमने क्या बताया था आपको? सिम्पोर्ट होता है या एंटीपोर्ट होता है, क्या बताया था? और एक बार बोलो। Antipode. द टू टाइप्स ऑफ आयन, वेरी गुड। ये देखो, दो आयन एक साथ हो गया। आगे करते Yes. आगे चलते हैं। एंटीपोर्ट में क्या होता है? देखो, सोडियम कैल्शियम, ऐसे डिफरेंट आयन, इधर से उधर, इधर से उधर, ओके, हो गया। Yes, sir. Yes, sir. ओके, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है बोलो, बताया था। देखो, एनर्जी खर्च हो रहा है कि नहीं? देखो, Yes. ये गेटेड टाइप का टनल होता है। गेटेड समझ में आता है? पहले तुम इधर आओ, फिर हम इसको क्लोज कर देंगे, इधर को ओपन कर देंगे, ठीक है? लिफ्ट में जैसे होता है ना। हेलो, Yes, sir. पहले इधर से Yes, इधर आओ, फिर ये क्लोज हो जाएगा, फिर इधर और एक डोर ओपन हो जाएगा, ऐसे होता है। ओके, इसको क्या बोलेंगे? गेटेड चैनल। Gated channel. हाँ, गेटेड चैनल भी होता है। हाँ देखो, आप चले जाओ, फिर एनर्जी दे दो, फिर ओपन हो गया इधर, फिर इधर से कुछ ले आओ, फिर ओपन कर दो, इधर आ गया। इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं? हेलो, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, तो ये सिलेक्टिव होता है, वेरी गुड। तो मैं इसको ही खत्म करके रखूंगा, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, इसको ही खत्म करेंगे। फर्स्ट पेज, सेकेंड पेज, थर्ड पेज एंड थर्ड एंड हाफ पेज, ओके। इधर आया, लो से हायर आ रहा है, देखो लो से हायर आ रहा है, इसलिए वो पंप्स बोलते हैं। पंप्स एक्टिव होता है या पैसिव होता है? बोलो बोलो जल्दी। पंपिंग एक्टिव होता है या पैसिव होता है? पंपिंग, Active. यस, वेरी गुड। लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन होता है, इसलिए उसको अप हिल बोलेंगे या डाउन हिल बोलेंगे? Uphill. देखो, कोई भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, अपने आप आपका हो रहा है, आपको मालूम भी है, थोड़ा हमने पढ़ाया अभी आपको, तो दोनों एक साथ किया, देखते हैं हो रहा है कि नहीं। सब हो रहा है कि नहीं? ट्रांसपोर्ट रीचेस मैक्सिमम व्हेन ऑल द प्रोटीन ट्रांसपोर्ट्स आर बीइंग सैचुरेटेड, के आगे नहीं जाए। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी सैचुरेट होता है कि नहीं? होता है. उस ग्राफ होता है। में थोड़ा भूल गया वो, ये ए है, ये बी है, और ये सी भी है, बट ये सी वाला थोड़ा ऐसे होगा, क्योंकि ये एनर्जी होता है ना, तो एनर्जी लगने से वो ज्यादा रेट हायर होगा। तो सी समझ में आ गया? सी क्या है? सर फिर से बोलो। ये नहीं सर, और एक. ये ए है ऐसे, और ये बी है, और ये ऐसे सी है। और एक बार बोल, और एक बार अच्छे से बना देते हैं, समझ में आएगा। हेलो,
ये देखो, इसे हमने रेट बनाया, रेट रेट, ये आपका इससे बढ़ता गया, ये आपके कुछ टाइम बढ़ने के बाद कांस्टेंट हो गया, ठीक है, और ये बढ़ा फिर कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो इसका नाम हमने क्या दिया था, बोलो। ये इससे बढ़ा कुछ टाइम के लिए, हाँ ये कांस्टेंट हो गया। इससे क्यों हो रहा है समझ, ये देखो, और एक बार बनाते हैं, ये इससे बढ़ा और ऐसे कांस्टेंट हो गया, ठीक है। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। ये क्या है, डिफ्यूजन है कि नहीं, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. सी एंड बी में विच इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, C. C is facilitated diffusion. Why it is facilitated diffusion? क्योंकि एक्टिव जो होता है वो हायर होता है, हायर रेट होता है कि नहीं एक्टिव, Yes, sir. तो Yes, sir. Yes, sir. हायर में आके सैचुरेट हुआ है, ठीक है, समझ में आया, हायर में आके सैचुरेट हुआ है। Yes, sir. हाँ बस वही बोल रहा था कि एक्टिव जो होता है एनर्जी लगता है ना तो रैपिड होता है, उसका रेट थोड़ा हायर होता है बट फिर भी वो सैचुरेटेड होता है। Saturated. वेरी गुड, वही पूछ रहा था, समझ में आ गया। कोई एक स्टूडेंट, एक फ्रेंड आपका बोल दिया तो अच्छा है, और आप लोग के आपको मेजोरिटी को मालूम था। तो इसके लिए हमने आपको बोला था यहाँ तक आपको कंसंट्रेट करना है, और फिर मैं ऑस्मोसिस का एक डेफिनेशन दे दूंगा। ये आपका पेज नंबर कितना है बोलो, अगर एनसीईआरटी बुक है। 178. हाँ, जिन लोग के पास 170 है वो लोग उस पेज से कर सकते हो, नहीं तो यहीं से भी कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, दोनों बराबर है और दोनों आपको मालूम है ऑलरेडी। करेक्ट, मालूम है कि नहीं आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पर प्रोटीन चाहिए तो फैसिलिटेट में चाहिए, एक्टिव में चाहिए, सिंपल डिफ्यूजन में नहीं चाहिए। करेक्ट। Yes, sir. Correct. अरे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब क्या है मालूम है? यहाँ पर एक पिकनिक का ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और बच्चे अपने दम पर आएंगे तो ये डिफ्यूजन है। सबको आना है, अपने दम पर आ जाओ। तो हमें कुछ सैचुरेशन नहीं है, आप खुद जाके, हमें कुछ गाड़ी नहीं चाहिए, आप अपने दम पर आ जाओ, हो गया, ठीक है। ये है आपका क्या है, ये डिफ्यूजन है। तो अभी उस पिकनिक में मुझे भी जाना है, ठीक है, मैं भी अलोंग दैट, और मेरे कार में कितना आदमी बैठ पाएगा? सपोज 4 आदमी और 5 आदमी सपोज, तो मेरे गाड़ी में बैठ के 5 आदमी यहाँ पर आएंगे। तो आप लोग सपोज 9 स्टूडेंट्स हो, ठीक है, तो मैं सिलेक्टिव 5 को ही तो ला पाऊंगा ना, हेलो, या 4 या 5। Yes, sir. तो मैं क्या बोलूंगा, नहीं, जिन लोग का 1 से 1 2 3 को ले लूंगा, और जो वीक है, बहुत वीक है, मतलब चल नहीं पाते, ओके, वीक बच्चे होते हैं ना जो हेल्दी नहीं, तो उनको मैं ले लूंगा, ठीक है। तो 5 बच्चों को मैं लेकर आया, और यहाँ पर जब हमने उतरा, जब आप लोग यहाँ पर नीचे आए तो एक सपोज लक्ष्मी इज पेइंग मी 100 रुपीज, सर ऑटो चार्ज का ले लीजिए आप। तो ये मैं नेक्स्ट टाइम लक्ष्मी को लाऊंगा कि नहीं लाऊंगा, बोलो। Yes, sir. लेंगे. नहीं लाएंगे, 100 रुपीज मैं लूंगा क्या? मैं बोलूंगा तुम्हारे पास पैसे है तो तुम एक्टिव में आ जाओ, माने ऑटो में ही आ जाओ, ठीक है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एटीपी चाहिए क्या? देखो, अरे नहीं. हाँ, No, sir. नहीं. हाँ, No, sir. इसलिए नहीं लेंगे, डोंट ऑफर मी मनी, क्योंकि ये मेरा ड्यूटी था, मैं तो जा रहा था तो आपको फैसिलिटेट करने के लिए मैं आ रहा था। बट अगर आपको ऑटो वाला यहाँ पर मिला, और बाकी बच्चे जो 4 बच्चे 5 बच्चे थे ना वहाँ, वो लोग कैसे आएंगे? वो एक ऑटो में आए, और ऑटो जा रहा था इस साइड में, वो लोग आ रहे थे इस साइड में, तो इट इज अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और नॉट एक्टिव, अपहिल और डाउनहिल? Yes, sir. अपहिल।
तो एनर्जी चाहिए, इट इज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ फील्ड, और मेम्ब्रेन चाहिए इसलिए सिलेक्टिव है। ऑटो भी सबको नहीं लेगा, जो वहीं पर मिलेगा उसको लेगा, और ट्रांसपोर्ट सैचुरेट्स। ठीक है, यहाँ तक हो गया। और यहाँ पर नो 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 नो, और यहाँ पर यस 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 नो नो। ठीक है, समझ में आ गया? क्योंकि Yes, sir. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी डाउन हिल होता है, ऑफ हिल नहीं। क्या होता है? डाउन हिल होता है। तो अभी मुझे बताओ, अभी मुझे बताओ शुभम, व्हाट आर द फीचर्स, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज, बताओ शॉर्टकट में बताओ। प्रोटीन्स, कैरियर्स, सिलेक्टिव, सैचुरेशन, Saturated off-field transport, Transport, ATP energy. ATP energy. यस शुभम, समझ में आ गया? बोलो और एक बार। membrane proteins, selective nature, transport Yes. saturation of field transport, and ATP requirement of ATP energy. वेरी गुड। अब हम जाएंगे, एक डेफिनेशन लिखेंगे, जैसे आप मानोगे कि मैं आपका गुरु हूं, फिर जाके हम आपको जानने देंगे। ओके, ठीक है, समझ में आया? पहले इसको खत्म कर लो, फिर हम और एक लाइन लिखेंगे, बस हो गया। बोलो। low process, Slow process. slow process, वेरी गुड, हो गया। समझ में आ गया सबको? ये बोलो। diffusion, डिफ्यूजन पैसिव है। diffusion. स्टार्टिंग में बताया था। ये भी बताया था आज। बोलो। Smaller substance diffuse faster. हेलो लक्ष्मी, हो रहे? Yes, sir. Yes, sir. तो उसके आगे हम जाएंगे, बट आज नहीं। बट मैं आपको एक लाइन बोला था, अगर ये आपको अच्छा लगे तभी मुझे गुरु मानना, इसलिए मैं इसको बताऊंगा, फिर आप जाना। ठीक है? हेलो, Yes, Yes, sir. sir. तो बोलो। Yes, sir. हाँ, उस पॉइंट का कंसेप्ट का नाम क्या है? ऑस्मोसिस। दिखाई दे रहा है आप सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो ऑस्मोसिस इज ए स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन, बताया था? Yes, sir. Yes, Yes. sir. Yes, sir. इसका कितना टाइप का डेफिनेशन आप बोल पाओगे? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेफिनेशन यू कैन मेक इट? तो ट्राई करें। तो फर्स्ट पॉइंट Yes. बोलो, फर्स्ट पॉइंट बोलो। Movement of water by diffusion. मूवमेंट ऑफ वाटर across a semi-permeable membrane, Yes, sir. Semi-permeable. across a semi-permeable membrane. ओके, बस। तो यहाँ पर मैं इसे बना दिया। ओके, फ्रॉम डैश टू डैश, हो गया? Higher concentration. Higher हाँ। concentration. गलत, मैं आपका गुरु हूँ। देखो, चेंज कर दिया, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। क्योंकि किसने तुम्हें बोला सॉल्यूशन को पानी अलग करने के लिए? दोनों साइड में सॉल्यूशन है कि नहीं? बोलो। Yes. जहां पर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कम होगा, वहां पर ईट्स हायर कंसंट्रेशन होगा। फ्रॉम ईट्स हायर कंसंट्रेशन टू ईट्स लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. पानी का हायर कंसंट्रेशन। तो दो डेफिनेशन तो यहीं पर हमने बना दिया। हम आहिस्ते आहिस्ते और भी बताएंगे आपको, बट अभी तो दो डेफिनेशन हो गया। फ्रॉम ईच हायर कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन। बट अगर कुछ भी नहीं दिया है तो हु टोल्ड यू टू सेपरेट पानी का अलग? सॉल्यूशन बोलना पड़ेगा कि नहीं? Yes, sir. हाँ, तो Yes, sir. फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। माना? यहाँ पर माना कि नहीं मैं गुरु हूँ? फिर देखना, Yes, sir. फ्रॉम हायर टर्गर प्रेशर से
लोअर टर्गर प्रेशर, करेक्ट है। टर्गर प्रेशर, इसको टीपी का मतलब क्या है अभी पढ़ा या नहीं? अभी बता रहा हूँ, जितना टर्गर। पानी ज्यादा टर्गर प्रेशर उतना ज्यादा। वेरी गुड। फ्रॉम लो ओपी से हाई ओपी, हाई ओपी। हाँ बस। और लास्ट पॉइंट आज का क्लास का, फ्रॉम हायर सक्शन प्रेशर से लोअर सक्शन प्रेशर, और फ्रॉम लोअर सक्शन प्रेशर से हायर सक्शन प्रेशर। बोलो। Higher to lower. नो, Lower Lower to higher. Higher. सक्शन पावर जो होगा जिस साइड में ज्यादा होगा उस साइड में जाएगा। तो इतना लिखो। अभी तक हमने 5 डेफिनेशन दिया, बट हम आपको 50 डेफिनेशन भी दे सकते हैं। ओके, थैंक यू। आप लोग सब अच्छे हो। तो हुआ Thank you, दिया, sir. थोड़ा क्विकली Thank you, देख लेता हूँ। Thank हुआ you, दिया sir. लक्ष्मी, Thank you, sir. राजेश्वरी, Thank you, sir. Thank you, ओके, sir. मधु, कान्हू, प्रत्युषा, Thank स्मृति, you, sir. स्नेहा एंड शुभम। Yes, sir. किसका नाम मिस कर लिया क्या? नहीं, सबका नाम तो लिया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट टाइम विल एंजॉय फर्दर। ओके, बाय। Thank you, sir. Bye, sir. Thank Bye, you, sir. sir. हाँ।